سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر. بہت ہی نصیباور حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حاضرین اکرام، ہم لوگ جن ایام سے گزر رہے ہیں، یہ ایام دنیا کے سب سے افضل ایام ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی دنیا میں سب سے بہتر ایام، سب سے بہتر دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ابتدائی 10 ایام میں، 10 دنوں میں اللہ رب العزت کو نیکیاں اس قدر پسند ہیں کہ دوسرے دنوں میں اس قدر و نیکیاں پسند نہیں ہیں. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ایام میں انسان جہاد کرتا ہے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ بھی انسان وہ جو کام کر رہا ہے اس کی نیکی بھی ان 10 ایام میں کیے جانے والے نیکیوں سے بہتر نہیں ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا،
इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व मालिही व लम यरजा बिशैइन मिन्हा। हाँ, वो शख्स बेहतर है जो अपने जान माल के साथ निकलता है और अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश कर देता है, अपने अमवाल को खर्च कर देता है, वो शख्स ही बेहतर है। अलबत्ता इन 10 अय्याम की नेकियां बहुत ही अजीम हैं। इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मरवी है कि उन्होंने बयान फरमाया कि इन 10 दिनों की नेकियां अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में दुनिया के दिगर अय्याम में की जाने वाली नेकियों से कहीं ज्यादा हैं। इसी वजह से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़अक्सिरू फ़ीहिन्न तहलील व तकबीर व तहमीद। चूंकि ये अय्याम दुनिया के सबसे बेहतर अय्याम हैं, सबसे बेहतर दिन है, और इसमें इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह के मुताबिक उम्महातुल इबादात जमा है। बड़ी बड़ी इबादतें आप देखेंगे कि इन 10 अय्याम के अंदर यकजा हो गई हैं। इसी वजह से इनको अफदल अय्यामी दुनिया यानी दुनिया के बेहतरीन अय्याम करार दिया गया है। तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़अक्सिरू फ़ीहिन्न तहलील। चूंकि यह अय्याम सबसे बेहतर अय्याम है, तो एक इंसान को क्या करना चाहिए? इन दिनों में तहलील और तहमीद, तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो तकबीरात हैं, इनका ज्यादा से ज्यादा विर्द करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इनको पढ़ना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में आता है कि वह दुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 अय्याम में बाजारों में निकल जाया करते थे और खूब कसरत से तकबीरात का एहतमाम किया करते थे, और उन्हें देख करके बाजार में जो लोग होते थे वो भी तकबीरात का एहतमाम करने लगते थे। इसी वजह से हम ये जिन अय्याम से गुजर रहे हैं, इन अय्याम की अजमत को जानना चाहिए, समझना चाहिए, और इसमें ज्यादा से ज्यादा नेकियों का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हुनैदा बिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी अहलिया से बयान करते हैं, और वो उम्महातुल मुमिनीन में से किसी से बयान करते ही हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदाई यानी दिलहिज्जा के इब्तदाई 10 दिनों में से 9 दिनों का रोजा रखा करते थे। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु 9 दिलहिज्जा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलहिज्जा के इब्तदाई 9 दिनों का रोजा रखा करते थे। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलहिज्जा के इब्तदाई 9 दिनों के रोजे का एहतमाम किया करते थे। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा और पैरवी में हमें भी इस चीज का एहतमाम करना चाहिए, और हमें भी इन अय्याम में ज्यादा से ज्यादा नेकियों का एहतमाम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सत्ता व खैरात करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तकबीरात का एहतमाम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तलावत कलाम पाक करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अय्याम को अफजल अय्यामी दुनिया, दुनिया के सबसे बेहतर दिन बताया है। और इसी तरह से इन 10 दिनों के यानी 9 दिनों के खत्म होने के बाद 10वें दिन में हम कुर्बानी पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर हस्बे इस्तिताअत कुर्बानी पेश करेंगे। जाहिर सी बात है कि कुर्बानी के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी पेश कीजिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुर्बानी का हुक्म दिया गया, साथ ही साथ इस बात का भी हुक्म दिया गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को इंसान जो कुर्बानी पेश करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर जिन जानवरों की कुर्बानी पेश करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को उनका गोश्त पोश्त
या दूसरी चीजें नहीं पहुंचती हैं। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि दिल के अंदर जो खुलूस है, जो नेकनियती है, इंसान जिस नियत से, जिस खुलूस से कुर्बानी का जानवर अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में कुर्बान कर रहा है, उसके दिल का खुलूस ही अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पहुंचता है। इसी वजह से हमें खालिस इखलास के साथ और नेकनियती के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कुर्बानी पेश करना चाहिए। रिया व नुमूद या ये कि दिखावे के लिए हमें कुर्बानी नहीं पेश करनी चाहिए। शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मशहूर हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद की रवायत है, मुहद्दिसीन ने इसे हसन करार दिया है कि मन सल्ला युराई फक़द अशरक, मन साम युराई फक़द अशरक, मन तसद्दक़ युराई फक़द अशरक, कि अगर कोई शख्स दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है तो शिर्क करता है, दिखावे के लिए रोजा रखता है तो शिर्क करता है, और दिखावे के लिए सदका करता है तो भी शिर्क करता है। कितनी बड़ी वईद है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में बयान फरमाया कि इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इम्रातिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। यानी इंसान जो नेकियां करता है और नेकियों के पसे पर्दा जो नीयत होती है, उसी नीयत का एतबार है। यानी अगर कोई शख्स हिजरत जैसी इबादत, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में इरशाद फरमाया है कि इन्नल हिजरत तहदिमु मा कानत क़ब्लहा, कि हिजरत से पहले इंसान जो भी गुनाह के काम किए होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उन गुनाहों को माफ फरमा देगा। यानी हिजरत एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हिजरत की वजह से साबका तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन अगर कोई इंसान दुनियादारी के मकसद से, किसी औरत से शादी करने के मकसद से हिजरत करता है, एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाता है, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उसकी हिजरत अकारत है, बेकार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर सवाब अता नहीं करेगा, बल्कि ये उसके लिए वईद और वबाल बन जाएगी। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हदीसों में बयान फरमाया कि अव्वलु मन तुसअरु बिहिमुन नार, कि ओ उलमा जो अपने इल्म के मुताबिक अमल नहीं करते, या ये कि जो जोहला पर अपनी शेखी बिगाड़ते हैं, या ये कि ओ कुर्रा जो लोगों के सामने कारी कहलाने के लिए, या ये कि खुश इल्हान कारी कहलाने के लिए खूब अच्छी आवाज में क़रात किया करते थे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग ऐसे लोगों से ही भड़काई जाएगी, ऐसे लोगों के जरिए से ही तेज की जाएगी। हाज़रीन इकराम, ये गौर करने का मकाम है कि कुर्बानी एक अजीम इबादत है, और ये इबादत अगर इसके अंदर खुलूस नहीं है तो ये वबाल भी बन सकती है। हम में से अक्सर लोग जानवर खरीदते हैं कुर्बानी करने के लिए, और उस जानवर का ऐसे इजहार करते हैं या लोगों पर ऐसे जताते हैं कि गोया उनका मकसद कुर्बानी करना नहीं होता, लोगों पर उसका एहसान जताना मकसद होता है, या ये दिखलाना मकसद होता है कि देखो मेरा जानवर, या मैं जिस जानवर की कुर्बानी पेश करने वाला हूं वो तुम्हारे जानवर से या पूरे कॉलोनी के जानवर से ज्यादा मोटा, ज्यादा फरबा और ज्यादा खूबसूरत है। अगर ऐसी कोई नियत हमारे दिल के अंदर है, ऐसा कोई इरादा है, या ऐसी कोई चीज हमारे दिल में मौजूद है, तो माफ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को ऐसी कुर्बानियों की जरूरत नहीं है। आप तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस जज्बे से अपने लख्त जिगर नूरे नजर इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का इरादा किया था। मुसलसल कई रोज तक ख्वाब देखा, और फिर अपने बेटे से मशवरा किया, कहा कि देखो बेटा, मैं मुसलसल कई रोज से ये ख्वाब देख रहा हूं कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, अपने हाथों से ज़बह कर रहा हूं। हमें मालूम है कि अंबिया किराम का ख्वाब
सच्चा हुआ करता है। रोयल अंबिया हक़्क़ुन, अंबिया किराम के ख्वाब सच्चे होते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम से जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये बात कही और कहा कि फंजुर माज़ा तरा, देख लो, गौर कर लो और इस मसले में अपनी राय दो कि तुम्हारी राय क्या है, तुम इसके लिए आमादा हो या फिर कुछ और राय है तुम्हारी। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जेर तरबियत परवान चढ़े थे। वो भी एक नबी के बेटे थे, इब्राहिम खलीलुल्लाह यानी खलीलुल्लाह के बेटे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम खिल्लत से सरफराज फरमाया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त ये बात पूछी, उसी दम इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और कहा, या अबतिफ अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, कि अब्बू जान, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है और उस हुक्म के ताल्लुक से आप हमसे पूछते हैं। आज हम शिकवा करते हैं कि हमारी औलादें फर्माबरदार नहीं होती, या ये कि हमारी औलादें फर्माबरदार नहीं है, हमारी बातें नहीं मानती। सवाल पैदा होता है कि क्या हम अपनी औलादों का हक अदा करते हैं? क्या बाप की हैसियत से हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसवे को अपनाते हैं, अख्तियार करते हैं? नहीं अख्तियार करते। हम अपनी औलाद की तरबियत में क्या वो जतन करते हैं जो शरीयत ने हमारे लिए मुतय्यन फरमाए हैं? नहीं करते। क्या हम अपने वालिदैन के हुकूक को अदा करते हैं? नहीं करते। उसी चीज को हमारी औलादें देखती हैं और उसका नतीजा यह है कि हमारी औलादें आँख होती जा रही हैं। हमारी औलादें हमारी इज्जत नहीं करती। हमारी औलादें एक उम्र के बाद हमें ओल्ड एज होम में भेज देती हैं या घर से निकाल बाहर करती हैं, क्योंकि हम खुद अपने वालिदैन के हुकूक में कोताह साबित होते हैं। हाजिरीन किराम, कहने का मकसद यह है कि आप गौर फरमाएं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलसल कई रोज का ख्वाब दिखाया और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील और उसके हुक्म के नफाज के लिए अपने लख्त जिगर को अपने कांधे पर बिठाया और फिर मिना की तरफ निकल पड़े। सवाल पैदा होता है कि जब हम कुर्बानी पेश करते हैं, क्या ये हमारे दिल में ये एहसास और ये जज्बा मौजूद है? होता है कि बारे अल्लाह, हम जानवरों की आज कुर्बानी पेश कर रहे हैं और अगर कल जरूरत पड़ी, तेरा मुतालबा हुआ, तेरे दीन का मुतालबा हुआ, तो हम अपनी जानों की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हैं। अगर इस जज्बे से, इस फिक्र से, इस इरादे से हम जानवरों की कुर्बानी पेश कर रहे हैं तो हम लायक मुबारकबाद हैं, हम लायक सब मुबारकबाद हैं। लेकिन अगर हमारे दिलों के अंदर यह जज्बा पैदा नहीं होता, सिर्फ हम 10,000, 12,000, 15,000 के जानवरों की कुर्बानी पेश करके हम अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश होने की कोशिश करते हैं, तो माफ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को इन जानवरों की कुर्बानियों की जरूरत हरगिज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया कि लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। इसी तरह से मैं एक बात अर्ज कर दूं कि इब्तिदा इन्हीं अशरे ज़िलहिज्जा ही में एक दिन अरफा का दिन भी है। अरफा का दिन निहायत ही अजमत वाला दिन है, जिसके बारे में मुख्तलिफ रवायतें आई हैं, मुख्तलिफ फजीलतें वारिद हुई हैं। इसी रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम तमाम इंसानों से आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट पर हमारी रूहों को निकाल करके हमसे आदो पैमान लिया था। हमसे पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब और तुम्हारा पालनहार नहीं हूं? हमने इस बात की गवाही दी थी कि बला, हमने एतराफ किया था, इकरार किया था, हमने गवाही दी थी कि बारे अल्लाह, तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा पालनहार है, तू ही हमारा रब है। और फिर इसी रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन की तकमील फरमाई थी और अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक यहूदी ने कहा था कि आपके मजहब में, आपके दीन में एक ऐसी आयत है कि अगर वो आयत हमारे मजहब का हिस्सा होती तो हम उस दिन को, जिस दिन वो आयत नाजिल हुई है, उसको ईद का दिन बना लेते।
उस जगह को, जिस जगह में वो आयत नाजिल हुई, उसको हम ईदगाह बना लेते। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था कि नज़लत फी यौमिल जुमुअती व यौम अरफा, कि हाँ उस आयत के ताल्लुक से हमें तफसील मालूम है। हमें मालूम है कि वो आयत करीमा जुमा के दिन, अरफा के दिन, अरफा के मैदान में नाजिल हुई थी, लेकिन उस आयत में ऐन उसी चीज को मना किया गया है जिसके बारे में तुम कह रहे हो। और यह भी कहा था उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि जुमा के दिन और अरफा के दिन, और ये दोनों के दोनों दिन ईद है, ईद के दिन है, और इन्हीं दिनों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा को नाजिल किया था। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स सियाम अरफा युकफ्फिरु सनतल मादिया व सनतल काबिला, कि अगर कोई शख्स अरफा के दिन का रोजा रखता है, अरफा के दिन के रोजे का एहतमाम करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रोजे की वजह से उसके एक अगले साल के और एक पिछले साल के गुनाहों को माफ कर देता है। इसी वजह से हमें अरफा के दिन यानी 9 ज़िलहिज्जा के रोजे का एहतमाम करना चाहिए। हमें 9 ज़िलहिज्जा के रोजे का एहतमाम करना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अरफा के दिन का रोजा रखें, क्योंकि इस दिन की इबादत, इस दिन के रोजे की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे 2 साल के गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसी तरह से कुर्बानी के ताल्लुक से भी हमें मालूम है कि कुर्बानी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईदगाह के लिए निकलते थे तो कुर्बानी की नमाज अदा करने के लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर कुछ खाए पिए निकलते थे। कुर्बानी ईद उल फित्र में जाते तो कुछ खजूरें तनावल फरमा के जाया करते थे। कुर्बानी में जाया करते थे तो किस लिए? खाली पेट जाया करते थे। मकसद ये होता था कि आप जल्दी कुर्बानी की नमाज पढ़ करके वापस लौटें और आप सबसे पहले कुर्बानी का गोश्त खाएं, क्योंकि उमूमन लोग कुर्बानी के गोश्त, कुर्बानी ज़बह करने में ताखीर किया करते हैं, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। और अक्सर हम में से क्या करते हैं, कसाब और जज्जार का इंतजार करते हैं, कसाई का इंतजार करते हैं कि कसाई आएगा तो जानवर की कुर्बानी करेगा या गोश्त वगैरह, बोटी वगैरह बनाएगा। अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि आप अपनी कुर्बानी के जानवर को अपने हाथों से कुर्बान करें। आप अपने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँटों की कुर्बानी अपने हाथों से ज़बह किए। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 खस्सी लाए गए, 2 जानवर लाए गए। ज़बहहुमा बियदी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों जानवरों की कुर्बानी अपने हाथ से की। इसी तरह से एक हदीस में आता है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हलुम बिल मुदिया, कि छुरी लाओ। जब छुरी लाया गया तो बिहज़ीहा बेहजर, पत्थर पे उसे तेज करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और फिर उस जानवर की कुर्बानी अपने हाथों से की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुर्बानी के जानवरों को अपने हाथों से कुर्बान किया करते थे। सुन्नत यही है कि आप अपने जानवर की कुर्बानी अपने हाथों से करें, उसे अपने हाथों से ज़बह करें, उसके खाल वगैरह अपने हाथों से निकालें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पर अमल किया करते थे। इसी तरह से जानवरों के इंतखाब के ताल्लुक से उम्मन इन दिनों लोग जानवरों की खरीदारी करेंगे। इस ताल्लुक से अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमुरुना अन नस्तशरिफुल उज़ुन वल ऐनैन, कि जब हम कुर्बानी के जानवर को खरीदने के लिए जाते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दिया करते थे कि हम कान को, दोनों आंखों को अच्छे तौर से देख लिया करें कि ऐसा तो नहीं कोई ऐब मौजूद हो, उसके अंदर कोई ऐब हो। और हम जानते हैं कि ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। इसी तरह से एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अरबाउन ला तजूज़ु फिल अज़ाई, 4 तरह के जानवर ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अगर कोई शख्स कुर्बानी उन जानवरों की पेश करता है तो उसकी कुर्बानी काफी नहीं होती, या उसमें कुछ नक्स रह जाता है, गलत रह जाता है।
वो चार तरह के जानवर कौन है? अल-औरा बैयिन अवरुहा, अल-मरीदा बैयिन मरदुहा, अल-अरजा बैयिन दिलउहा, और इसी तरह से अल-कसीरा अल्लती ला तुल्का, कि कोई जानवर हो जो काना हो और उसका कानापन जाहिर हो, लंगड़ा हो उसका लंगड़ापन जाहिर हो, बीमार हो और उसकी बीमारी जाहिर हो, इसी तरह से जिस्म पर गूदा ना हो, तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी किसी भी सूरत में जायज नहीं है। आप तसव्वुर कीजिए कि जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे जानवर को पसंद नहीं करते हैं, तो आप कुर्बानी के जानवर को अल्लाह के हुजूर पेश करने वाले हैं। तो ये क्यों कर मुनासिब है, क्यों कर दुरुस्त है कि आप ऐसे जानवर को कुर्बानी के लिए इंतखाब करें। चुनांचे ऐसे जानवरों की कुर्बानी पेश करने से इंसान को बचना चाहिए। इसी तरह से जानवरों की कुर्बानी की नमाज पढ़ने के बाद, अदा करने के बाद करना चाहिए। बहुत सारे लोग खासकर देहातों में ईद की नमाज पढ़ने से पहले, यानी ईद उल अजहा की नमाज की अदायगी से पहले ही अपने जानवरों की कुर्बानी कर दिया करते हैं। बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मशहूर रवायत है कि अव्वल मा नब्दउ बिही यौमिना हाज़ा, कि आज के दिन सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि नुसल्ली फननहर, कि हम नमाज पढ़ते हैं, दोगाने ईद अदा करते हैं, उसके बाद हम अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं। अगर कोई शख्स इस तरह से करता है, यानी पहले जानवरों की कुर्बानी करता है और पहले ईद की नमाज पढ़ता है फिर जानवरों की कुर्बानी करता है, फकद असाब सुन्नत नबीना, तो वो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पा जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स पहले जानवरों की कुर्बानी कर देता है फिर दोबारा ईद पढ़ता है, तो ऐसे शख्स के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स तिल्क लहमुन अज्जलहु लिअहली, कि ऐसा शख्स अपने घर वालों के लिए गोश्त बस ज़बह कर दिया है, उसका कुर्बानी से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी उसी जानवर को हमने ईद की नमाज से पहले अदा कर दिया तो कुर्बानी के लिए काफी नहीं है। बल्कि बाद रवायतों में यह भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन ज़बह क़ब्ल सलाती फलयज़बह मकाना उखरा, कि अगर कोई शख्स कुर्बानी की नमाज से पहले अपने जानवर को ज़बह कर दिया है तो उसकी जगह पर दूसरे जानवर की कुर्बानी करे, और अगर नहीं करता है तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। चुनांचे इन तालीमात का हमें 500 लिहाज रखना है और कुर्बानी को पूरे इखलास के साथ अदा करना है। इसी तरह से हम जानते हैं कि दीन इस्लाम ने सफाई सुथराई का खुसूसी हुक्म दिया है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अत-तहूर शत्रुल ईमान, पाकी सफाई यह निस्फ ईमान है। ईमान का कि आप आधे हिस्से कीजिए, आधे हिस्से में पूरी इबादतें हैं, और आधे हिस्से को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत-तहूर शत्रुल ईमान। और हम मुसलमानों की हालत क्या है, हम जब कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी के खाल को, बट को ले जाकर के रास्ते पे डाल देते हैं। इन तमाम चीजों से अगयार क्या सबक लेते हैं कि मुसलमान सबसे गंदे लोग होते हैं, जबकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नाहियों से यह तालीम दी है कि गुजरगाह यानी जो लोग रास्तों से गुजरते हैं उन्हें अजियत देना ये सबसे बड़ा गुनाह है। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना ये ईमान का सबसे कमतर दर्जा है। लेकिन उसके बाद भी हम इन तालीमात को सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं, अमल के मैदान में कोरे साबित होते हैं। जरूरत इस बात की है कि जब हम कुर्बानी पेश करें तो कुर्बानी के जो फजलात होते हैं, जानवर के जो फजलात होते हैं, चाहे वो बट की शक्ल में हो, खालों की शक्ल में हो, हड्डियों की शक्ल में हो, या किसी भी शक्ल में, उसको जमीन के अंदर गाड़ें, या ये कि अगर एमसीडी वगैरह की गाड़ियां आती हैं उन गाड़ियों में उन फजलात को रखें, ताकि अगयार हमारे बारे में, हमारे कैरेक्टर के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारे मजहब के बारे में इस तरह की कोई अंगुष्ठ नुमाई न कर सके। क्योंकि इंसान, हमारे जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं, वो हमारे अमल से ही हमारे मजहब को, हमारे धर्म को, हमारे दीन को जानते हैं और उसके ताल्लुक से सबक लेते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम इन तालीमात का पासो लिहाज रखें,
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار اللہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ جب تک زندہ رکھ دین اسلام پہ زندہ رکھ, جب تو ہمیں وفات دے ایمان کی حالت میں وفات دے. بار اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں, مقہور ہیں, ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں, خاص طور سے غزہ کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما دے. بار اللہ میں سے جو مقروض ہیں ان پہ قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے. بار اللہ میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأكبر وأكبر والله أعلم بما تصنعون.